start now. As soon as other people join, you can admit them. You'll get an option to admit a particular person, and you can begin the lecture at 2 o'clock. Till then, you can have a normal conversation with students to join. Okay. And Shruti, have you read the chapter that was given to you? You can switch on your mic, Shruti, if that is comfortable for you. And if you want to type your queries out, you can do that as well. Till this time, what we can do is, Shruti, you can text your friends, those who might not have received the link for the lecture, and ask them to join. You can, yeah, Shruti. So you can, what you can do is, you can just text your friends to join for the session. Those of you are in contact, and we will begin the lecture as soon as possible. There is general type. Wait, hello everyone. So I can see around 4 people have joined in. We'll wait for 5-10 minutes more till others join in and we'll start our lecture. Till then, Mahesh, Shobha, and the people who have joined in, let me know, have you gone through the chapter that Siddharth sir had forwarded to you? Hello? Guys, let me know, have you read the chapter that has been forwarded to you? Shobha, Devil says, what's this? Okay, so I don't know what's the real name. It's Devil written here, and you've not read the chapter. Why? Okay, Tushar. So why haven't you read the chapter?
And there's one more person with the name TDF Gaming. Can I know what's his name? Chinmay. Okay. Chinmay, have you gone through the chapter? Okay. We'll wait for 2-3 minutes more. Mm, is anyone else going to join? Do you have any idea? Any of your friends are still pending to join? Or shall we start the lecture? Uh, shall we start the lecture or any of your friends are going to join in?
Okay, hello, good afternoon everyone. We'll start our lectures. Is that fine? Is everyone ready? Make sure you have a book and a pen with you. Okay, so today we are going to study accounts, one of the most important subject in your commerce. So, chalo, let me know how many of you like accounts. Let me know in the comment sections how many of you like it and you don't like it. हेलो, आप में से किस किस को अकाउंट्स पसंद है और किसको अकाउंट्स नहीं पसंद है? ओके गुड, आई कैन सी राकेश, चिन्मय, दीपक. बाकी लोग को अकाउंट्स नहीं पसंद है. ओके, तुषार डज नॉट लाइक अकाउंट्स. गुड, सो आई कैन सी मेजॉरिटी ऑफ यू लाइक अकाउंट्स. और अकाउंट्स को लाइक करना भी बहुत ज़रूरी है बिकॉज कॉमर्स का वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट्स है अकाउंट्स. और आप आगे और कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज परस्यू करते हैं तो उसमें भी अकाउंट्स बहुत कंपलसरी होता है. तो फिलहाल हम 12th के अकाउंट्स की बात करेंगे. अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 ऑन 100 स्कोर कर सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम में. बाकी थ्योरी सब्जेक्ट्स में शायद आप नहीं कर सकते होगे, बट अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 ऑन 100 स्कोर कर सकते हो. तो इसी डेडिकेशन के साथ हम अकाउंट स्टार्ट करेंगे कि हमको 100 ऑन 100 स्कोर करना है अकाउंट्स में. ओके, इज एवरीवन फाइन विद दैट? यस. तो जब जैसे ही सबसे पहले आपको अकाउंट्स की टेक्स्ट बुक मिलेगी तो सबसे पहले आपको उसमें लिखना है फर्स्ट पेज पे कि 100 ऑन 100. जैसे हम लिखते हैं ना जय माता दी, या जो भी आप लिखते हो ना, जय, सब भगवान को याद करते हो टेक्स्ट बुक्स पे, पेपर्स पे सब नाम लिखते हो भगवान के, उसके जगह हम लिखेंगे 100 ऑन 100. जब भी हम अकाउंट की टेक्स्ट बुक खोलेंगे हमको सबसे पहले वो मार्क्स दिखने चाहिए. ठीक है? गुड. ओके, so we'll start. Just a second, hold on. एक सेकंड, मुझे कोई टेक्निकल इशू आ रहा है, जस्ट होल्ड ऑन. ओके. ओके, सो हम लोग फर्स्ट अपना अकाउंट्स का 12th के अकाउंट्स का पोर्शन चेक करेंगे. ठीक है, विल गो थ्रू द अकाउंट्स पोर्शन. आई जस्ट टर्न ऑन दैट स्क्रीन.
Can everyone see the screen? Okay. ठीक है, तो फर्स्ट हम अपने कंटेंट सेक्शन में देखेंगे कि हम 12th में क्या क्या पढ़ने वाले हैं. दिस इज अकाउंट्स पार्ट 1. आवर फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप. सेकेंड इज फाइनल अकाउंट्स, गुडविल, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. सो आप देख सकते हो कि पार्ट 1 में हम पार्टनरशिप के बारे में काफी कुछ पढ़ने वाला है. सो व्हाट इज पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू यू? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन के पार्टनरशिप का मतलब क्या, आप पार्टनरशिप से क्या समझते हो? यस गाइस, व्हाट इज पार्टनरशिप? लाइक आपकी रफ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको क्या लगता है पार्टनरशिप क्या हो सकती है? राकेश, शोभा, तुषार, चिन्मय, एनीवन? Both parties invest to start a business. Okay. Sharing profit and loss. Okay. Sharing profit and loss, Mahesh, matlab? Like between whom? Yeah, right. Okay, so what is partnership? Partnership is basically when two or more people come together to start a business and to share its profits. दो से ज्यादा लोग अगर आते हैं साथ में और बिजनेस चालू करते हैं टू अर्न प्रॉफिट्स, इट्स कॉल्ड पार्टनरशिप. दैट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप स्टार्ट करने से पहले हम 11 का थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, ठीक है? 11 का अकाउंट सबको याद है कि नहीं? डज एवरीवन रिमेंबर्स 11th में क्या पढ़ा था? तो 11th में हमने कौन से बिजनेस के बारे में पढ़ा था? Okay, this has to be a very interactive session. I want everyone to comment in the chat box the answers, or they can also unmute their mic and let me know the answers. Mahesh writes sole proprietorship. Correct, Mahesh? Yes. So what is sole proprietorship? Sole सोल प्रोप्राइटरशिप बेसिकली वो बिजनेस है जिसमें सिर्फ एक इंसान बिजनेस करता था. हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, पीएनएल कैसे बनाते हैं, ये सब हमने 11th में पढ़ा था. करेक्ट? तो इन 12th स्टैंडर्ड वी आर गोइंग टू स्टडी कि हम पार्टनरशिप फर्म्स के अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, लेजर्स कैसे बनाते हैं और एंट्रीज कैसे करते हैं एंड ऑल दैट. तो टेल मी वन थिंग, अगर हम सोल प्रोप्राइटर से पार्टनरशिप बिजनेस चालू करते हैं तो क्या हमारे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है जैसे कैश लेजर बनाना, पीएनएल बनाना, बैलेंस शीट बनाना, क्या ये सब भी चेंज होंगे? Will the basic principle of accounting that we used to use in sole proprietorship will also change in partnership firm? Tushar says no. I want every one of you to comment in the chat section. Will the basic principle of accounting, like creating the P&L balance sheet, will change because we have moved from sole proprietorship to partnership? Yes or no? तुषार says no. वीरेंद्र right, no, no. ठीक है, मतलब 11th में आप लोग ने पढ़ाई की थी. गुड गाइस.
तो आपके जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट्स है वो जस्ट बिकॉज आपका नेचर ऑफ बिजनेस चेंज हो रहा है वो चेंज नहीं होंगे। आपकी कैश बुक बनेगी, आपकी बैंक बुक बनेगी, आपके फाइनल अकाउंट्स बनेंगे, सब कुछ बनेगा, सिर्फ आपका नेचर ऑफ बिजनेस चेंज हो रहा है। तो आपका 11th का जो अकाउंट्स है उसका बेस आपको 12th के अकाउंट्स पढ़ने के लिए बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपको 12th में कुछ नया अकाउंटिंग प्रिंसिपल के वाइज नहीं सीखना है, वो सब आपने 11th में सीख लिया है। आप उसको सिर्फ पार्टनरशिप अकाउंट्स, कंपनीज अकाउंट, इन सब में कैसे अप्लाई करेंगे वो आप 12th में सीखेंगे। ओके तो हम जब सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनल अकाउंट्स बनाते थे तो उसमें हम नेट प्रॉफिट कैसे निकालते थे? हाउ डिड वी रिमूव द नेट प्रॉफिट ऑफ द सोल प्रोप्राइटर? Guys, I want you to answer in the chat section if anyone of you know. ओके हमारे पास एक ट्रायल बैलेंस होता था, करेक्ट? एम आई करेक्ट? हमको प्रॉब्लम में एक ट्रायल बैलेंस दिया जाता था। ओके उस ट्रायल बैलेंस से वी यूज्ड टू मेक द ट्रेडिंग एंड द पीएनएल अकाउंट। उस ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में हम सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस डालते थे, फिर वी यूज्ड टू गेट द ग्रॉस प्रॉफिट। वो ग्रॉस प्रॉफिट को हम पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। तो जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, डेप्रिसिएशन, एवरीथिंग, we used to deduct from the gross profit and get the net profit. Correct? तो ये जो सारे प्रिंसिपल्स है कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है, नेट प्रॉफिट फाइंड करना है, वो सेम पार्टनरशिप में भी एप्लीकेबल होगा। आपके वो ट्रायल बैलेंस होगा, आपको उससे ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, नेट प्रॉफिट मिलेगा, वो सब आपको सेम प्रिंसिपल्स फॉलो होंगे। डेप्रिसिएशन, एवरीथिंग इज एप्लीकेबल टू द पार्टनरशिप फर्म ऑल्सो। पर सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक ही पर्सन होता था जो बिजनेस चलाता था। तो जब हमको नेट प्रॉफिट मिलता था तो हम वो प्रॉफिट को डायरेक्टली सोल प्रोप्राइटरशिप के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे, क्योंकि वहां पे एक ही पर्सन है, वही पर्सन को प्रॉफिट मिलने वाला है। हमको ना किसी को बाइफरकेट करना है, ना किसी को देना है। एक ओनर है, उसी के पास प्रॉफिट जाता था। लेकिन पार्टनरशिप में सिर्फ एक पर्सन तो है नहीं, पार्टनरशिप में 2 हो सकते, 3 हो सकते, 4 हो सकते, और लॉ के हिसाब से मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं। तो उसका प्रॉफिट हम कैसे ट्रांसफर करेंगे? क्या वो प्रॉफिट हम अपने मन के हिसाब से किसी एक पार्टनर को दे देंगे, किसी दूसरे पार्टनर को दे देंगे, इस साल ये पार्टनर को दे दिया, उस साल वो पार्टनर को देगा, ऐसा चलेगा क्या? नहीं। देयर हैज टू बी सम रूल्स एंड रेगुलेशन के हमको इस प्रॉफिट को उस पार्टनर्स में कैसे बांटना है। करेक्ट? तो नेट प्रॉफिट तक सब सेम है, जो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में सीखा था वही सेम पार्टनरशिप फर्म में अप्लाई है। लेकिन इस चैप्टर में आपको क्या अलग सीखना है? 95% ऑफ द पोर्शन, 95% ऑफ द थिंग इज द सेम जो आपने 11th में सीखा है कि आपको नेट प्रॉफिट निकालना है, ये करना है, वो करना है। बट जो 5% डिफरेंस है वो ये है कि आपको जो नेट प्रॉफिट मिला है उसको आपको पार्टनर में कैसे डिवाइड करोगे, ये चीज हम ये चैप्टर में सीखने वाले हैं। So everyone gets it? We are going to learn how to distribute the net profit among the partners in this chapter. अब हमको नेट प्रॉफिट तो मिल गया, ठीक है? तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जैसे हम ग्रॉस प्रॉफिट को पीएनएल अकाउंट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे लेकर आते थे, फिर उसमें से अदर एक्सपेंसेस डिडक्ट करते थे और नेट प्रॉफिट निकलता था, वैसे ही एक नेट प्रॉफिट हम किसी और अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, अब हमने ट्रांसफर तो कर दिया, उस अकाउंट को हम नाम क्या देंगे? ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और आप लोग ध्यान से सुनना, और कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज मुझे पूछना। हम इस नेट प्रॉफिट को एक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे जिस अकाउंट का नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट।
And why is this called as a profit and loss appropriation account? Appropriation account मतलब प्रॉफिट को बरोबर से, बेसिकली इट्स कॉल्ड बंटवारा। आपको जो प्रॉफिट मिला है उसको आपको फर्म के ओनर्स यानी पार्टनर्स के बीच में बांटना है। उसको बांटने के लिए आप उसको एक अलग अकाउंट में लेकर आओगे जिसको कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबको समझा ये? प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। ओके, गुड गुड गुड, आई लाइक इट। ऐसे इंटरैक्टिव है ना। लेट मी नो एवरीथिंग, लेट comment in the chat section whenever you have queries or whenever I'm asking a question। ठीक है, तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है जिसमें हम नेट प्रॉफिट लेकर आएंगे। अभी इस नेट प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे। तो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट बांटने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। एक है हम उनको एज सैलरी दे सकते हैं, पार्टनर्स को सैलरी दे सकते हैं। फिर या फिर पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे सकते हैं, कमीशन दे सकते हैं। इस तरह से हम उनका प्रॉफिट उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट आप जस्ट अ सेकंड, तो बेसिकली इस चैप्टर में आपको नेट प्रॉफिट यहाँ तक आपको सम में निकाल के दे दिया जाएगा। इसके आगे आपको उसको कैलकुलेट करके उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको नेट प्रॉफिट दे और आपको बोले कि इसमें हमने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया है और इसको आपको इस प्रॉफिट को आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्या वो करेक्ट नेट प्रॉफिट है जो आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? आपको एक नेट प्रॉफिट दिया है, उसमें उस अकाउंटेंट ने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया है एंड बोला है कि इस प्रॉफिट को आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्या वो करेक्ट नेट प्रॉफिट है जो आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर किसी प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ है तो वो आपका करेक्ट नेट प्रॉफिट होगा क्या? सपोज कंपनी का प्रॉफिट है 100, उसका डेप्रिसिएशन है 5, लेकिन अकाउंटेंट 5 रुपीज चार्ज करना भूल गया। तो क्या हम पूरा 100 जो हमारे पास 100 नेट प्रॉफिट आया वह पार्टनर्स में एज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? राइट, नो। तो हम पहले क्या करेंगे उसके लिए? पहले हम उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे और करेक्ट नेट प्रॉफिट निकालेंगे एंड देन विल डिस्ट्रीब्यूट इट अमॉन्ग द पार्टनर्स। डू यू गेट इट? ओके, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन अकाउंट ऑल्सो, मतलब आप इसको अज्यूम कर सकते हो कि जहां प्रॉफिट का बंटवारा होता है। और जो प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट है वहां पे वो वाले एक्सपेंसेस आते हैं जो आपको देने ही पड़ते हैं, मतलब दैट इज कॉल्ड एज चार्ज। और पीएनएल में हम वो एक्सपेंसेस डालते हैं जिसको हमको चार्ज करना होता है, जिसका हमको प्रॉफिट या लॉस से कोई मतलब नहीं होता। अगर हमको लॉस भी आया या हमको प्रॉफिट भी आया तो भी हमको वो पीएनएल में अकाउंट में एक्सपेंसेस चार्ज होंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, स्टाफ एक्सपेंसेस। ऐसा हो सकता है कि हमको लॉस हुआ है, हमारे पास स्टाफ और हम स्टाफ को बोले कि नहीं हम आपको सैलरी नहीं देंगे, ऐसा अलाउड है क्या? If we have a profit, if we have a loss of 100 rupees and we have to pay staff expenses, but we say, हम स्टाफ को बोलते हैं कि नहीं हमको इस बार लॉस हुआ है, हम आपको सैलरी नहीं देंगे, नहीं हम ऐसा नहीं बोल सकते। तो जो सैलरी ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं कि हमको प्रॉफिट हो या लॉस हो पर हमको वो एक्सपेंसेस पे करने ही है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल। हम गवर्नमेंट को ऐसा बोल सकते हैं कि इस साल हमको लॉस हुआ है, हम आपको इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट नहीं करेंगे? नहीं, हम ऐसा नहीं बोल सकते। तो जो ऐसे एक्सपेंसेस है कि भले ही हमको लॉस हो या प्रॉफिट हो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चार्ज होंगे ही, उसको हम पीएनएल में डालते हैं। सो वॉट एवर एक्सपेंसेस दैट वी हैव टू पे डिस्पाइट ऑफ लॉस और प्रॉफिट आर सबमिटेड इन द पीएनएल। लेकिन हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि इस साल हमको प्रॉफिट नहीं हुआ और हम पार्टनर्स को बोले देखो भाई हमको इस साल अपने फर्म को इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ है, हम आपको सैलरी नहीं दे सकते?
क्या ऐसा हो सकता है क्या? Viren says no. Mahesh says, Viren, why no? If we have no, अगर पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ है, Viren you can unmute if you want. अगर पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ है तो वो पार्टनर्स को सैलरी नहीं दे, ये नहीं चलेगा, ऐसा क्यों? Bhurchand also says no. ठीक है, पहले हमको समझना पड़ेगा कि पार्टनर्स कौन होते हैं. पार्टनर्स आर द ओनर्स ऑफ द बिजनेस. वो बिजनेस चलाते हैं, ठीक है. तो अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हुआ है तो ओनर्स अपनी सैलरी या प्रॉफिट लेंगे क्या? अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हुआ है तो ओनर्स बोलेंगे ठीक है, हमने इतना कमाया ही नहीं तो हम इतना कैसे ले सकते हैं. करेक्ट. आप स्टाफ को ये नहीं बोल सकते, आप गवर्नमेंट को ये नहीं बोल सकते, लेकिन अगर वो आपका खुद का बिजनेस है और अगर आपको लॉस हुआ है तो भी आप उसमें से सैलरी लोगे क्या? Viren and Bhushan, did you understand? Even if you have losses, then as a partner, as a owner, you won't be paid salary because वो आपका business है. If you have loss, you won't be charging a salary or a profit. Good. तो अगर आपको नेट प्रॉफिट के बजाय नेट लॉस हुआ है, then the partners will not get any salary or any commission or any profit. So you have to understand that profit and loss appropriation account में सिर्फ वही पेमेंट्स आते हैं जो पार्टनर्स को दिए जाते हैं. उसके अलावा कोई पेमेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएंगे, बिकॉज इसका मेन क्राइटेरिया ये है कि जो भी प्रॉफिट अर्न हुआ है वो हमको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो क्या जो हम सैलरी पे करते हैं स्टाफ को या जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा? नो. करेक्ट. ये आपको अच्छे से याद रखना है कि ओनली दोज पेमेंट्स व्हिच आर मेड टू द पार्टनर्स will come in profit and loss appropriation account. Is that clear? Is that clear, everyone? Okay, good. So, before going further, we'll solve some easy problems. Is that fine? I have some questions. You'll have to solve it and answer it in the chat box. So, we'll get an idea whether we have understood up till now or not. Okay? ठीक है. So, let's go to the first question. Can everyone see the question? Okay. So the first question is, the net profit of the firm is 3 lakhs. The firm has 3 partners. Profit sharing ratio is 3:2:1. Find out the profit to be distributed to each partner. फर्म का प्रॉफिट 3 lakhs है, फर्म के पास 3 पार्टनर्स है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1. तो हर एक पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा? प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन. यश अग्रवाल सेज 1,50,000. 1,50,000 कौन से पार्टनर को मिलेगा यश?
ओके, आई हैव नॉट रिटर्न द पार्टनर. ओके, ठीक है. राइट. 1,50,000, 1,00,000 एंड गुड. यश, बाकी सब भी सॉल्व कर रहे हैं ना? इज एवरीवन सॉल्विंग? तो यश ने जो आंसर दिया है वो करेक्ट है? सबको वही आंसर मिल रहा है? ओके. ओके, ठीक है. सो विल मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन. Net profit is 50,000. The firm has two partners. Profit sharing ratio is 3:1. The accountant has not deducted depreciation amounting 5,000 and electricity expense of 5,000. Find the amount to be distributed to the each partner. फर्म का प्रॉफिट 50,000 है, फर्म के पास दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है. जो प्रॉफिट दिया गया है उसमें से अकाउंटेंट ने डेप्रिसिएशन 5,000 और इलेक्ट्रिसिटी 5,000 डिडक्ट नहीं किया है. तो इस केस में हर पार्टनर पे कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा? Are you solving the sum? Shall I repeat the question? The firm has a profit of 50,000. It has two partners. Profit sharing ratio is 3:1. प्रॉफिट में अकाउंटेंट ने डेप्रिसिएशन और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डिडक्ट करना भूल गया है. ईच पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट में? What's the answer? Anyone? What's the answer? Yash says 33,750, 11,250. Okay, Yash. Anyone else? Do everyone agree with Yash answer or anyone has a different answer? Mahesh, Deepak, Rakesh, Shobha. Do everyone agree with Yash answer or anyone has a different answer? Okay, I'll repeat the question again. This answer is not correct. यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट दिया है दैट इज 50,000, राइट? पहले तो क्या ये नेट प्रॉफिट करेक्ट है? इज 50,000 करेक्ट नेट प्रॉफिट? जबकि क्वेश्चन में लिखा है कि द अकाउंटेंट हैज नॉट डिडक्टेड डेप्रिसिएशन एंड ऑफ 5,000 एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ऑफ 5,000. इज द गिवन नेट प्रॉफिट करेक्ट? यहाँ पे लिखा है द अकाउंटेंट डिड नॉट डिडक्ट डेप्रिसिएशन ऑफ 5,000 एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ऑफ 5,000. तो आपका करेक्ट नेट प्रॉफिट क्या होगा? क्या डेप्रिसिएशन और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस माइनस करे बिना आपको करेक्ट नेट प्रॉफिट मिल सकता है? नो. तुषार से 40,000 करेक्ट. तो आपका करेक्ट नेट प्रॉफिट क्या होगा? 40,000.
और हमने क्या पढ़ा था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो करेक्ट नेट प्रॉफिट है वो जाता है आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस द नेट प्रॉफिट व्हिच यू गेट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और फिर वो प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होता है। तो यहाँ पे करेक्ट नेट प्रॉफिट क्या है? 40,000। Now the 40,000 will be divided between the partners in 3:1 ratio. Do you understand? Are you understanding? Okay, electricity expense was not visible. Okay, so, तो अभी क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के बीच में? What will be the amount distributed between the partners? $30,000 and $10,000. Correct, यश? तो आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं जहां आपको रॉन्ग नेट प्रॉफिट दिया होगा, तो पहले आपको उसको करेक्ट करना है। डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी ऐसे एक्सपेंसेस है जो चार्ज करना कंपलसरी है, वो माइनस करने के बाद जो आपको प्रॉफिट मिलेगा उसी प्रॉफिट को आप पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पहले आपको आपका प्रॉफिट करेक्ट करना पड़ेगा और फिर वो करेक्ट प्रॉफिट को आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एम आई क्लियर? ठीक है, विल मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। In the above example, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ऊपर का एग्जाम्पल है, उसमें एक 4,000 की सैलरी है जो पार्टनर को देनी थी, वो भी उस प्रॉफिट में से डिडक्ट नहीं हुई है। फर्म का प्रॉफिट 50,000 है, फर्म के पास दो पार्टनर है, उन दोनों में 3:1 में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। अकाउंटेंट ने डेप्रिसिएशन और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डिडक्ट नहीं किए हैं और अकाउंटेंट ने 4,000 सैलरी जो पार्टनर को दी जानी चाहिए वो भी डिडक्ट नहीं की है। So now what will be the correct profit and what will be the amount paid to the partners? Tushar says 36,000. Do everyone agree with Tushar or anyone has a different answer? Chinmay says 36,000. Why 36,000 is the correct profit? What is the correct net profit? The answer is not 36,000. The answer will be 40,000 only. Because salary to the partner is a distribution of profit. वो हमको नेट प्रॉफिट मिलने के बाद ही हम पार्टनर को सैलरी दे सकते हैं। इट इज नॉट एन चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम पार्टनर्स को सैलरी नहीं देंगे। तो योर करेक्ट नेट प्रॉफिट विल बी डेप्रिसिएशन और इलेक्ट्रिसिटी माइनस करके जो 40,000 आता है वो ही आपका नेट प्रॉफिट होगा। वो नेट प्रॉफिट आप अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेकर जाओगे और उस नेट प्रॉफिट में से जो भी पेमेंट्स आपको पार्टनर्स को करने हैं उस नेट प्रॉफिट में से डिडक्ट होंगे। पार्टनर की सैलरी पीएनएल अकाउंट में नहीं जाती है, पार्टनर की सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाती है। तो 40,000 विल बी योर नेट प्रॉफिट। उसमें से आप
उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेकर जाओगे, फिर आप उसमें से आप पार्टनर्स को 4,000 सैलरी दोगे। उसके बाद आपके पास 36,000 बचेगा जो आप पार्टनर्स को एज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करोगे। So your correct net profit will be 40,000. That will be carried to profit and loss appropriation account. उसमें से पहले आप 4,000 की सैलरी माइनस करोगे पार्टनर्स की, एंड 36,000 जो बचेगा उसको आप एज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करोगे पार्टनर्स में। इज दैट क्लियर? सी, जो भी पार्टनर्स के रिलेटेड पेमेंट्स होते हैं जैसे सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट, वो सारा का जो कैलकुलेशन होता है वो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हो once you get the net profit. All the payments made to the partners will be deducted from the net profit in profit and loss appropriation account. Is that clear? Is that clear, everyone? Okay, let's take one more example. So a firm has a profit of 10,000. The firm has not deducted rent expenses of 2,000. फर्म का प्रॉफिट है 10,000, उसने 2,000 रेंट का एक्सपेंस डिडक्ट नहीं किया है, और उसने पार्टनर की जो सैलरी है 2,000 वो भी डिडक्ट नहीं की है। तो फर्म का करेक्ट नेट प्रॉफिट क्या होगा? देयर इज अ फर्म जिसका प्रॉफिट है 10,000, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो चार्ज नहीं हुआ है वो है 2,000, पार्टनर की सैलरी जो चार्ज नहीं हुई है वो है 2,000, और पार्टनर का कमीशन जो चार्ज नहीं हुआ है वो है 1,000। तो इसमें करेक्ट नेट प्रॉफिट क्या है फर्म का, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा? 8,000। करेक्ट, इट विल बी 8,000, राइट। और जो प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप 8,000 लाओगे, ठीक है। फिर उसमें से आप कितना अमाउंट पार्टनर्स में एज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करोगे? वीरेन सेज 5,000, यश सेज 5,000। यस, करेक्ट, आप उसमें से 5,000 एज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करोगे, एंड आपका जो करेक्ट नेट प्रॉफिट होगा वो 8,000 होगा। So again I am repeating, all the payments that you will make to the partner will be deducted from the net profit in profit and loss appropriation account. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो सारे पेमेंट्स जो पार्टनर्स को दिए जाते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में चार्ज होंगे, और बाकी जो ऐसे एक्सपेंसेस है जो आपको भले ही प्रॉफिट हो, लॉस हो, कुछ भी हो, जो वो आपको देना ही पड़ेगा, जैसे स्टाफ एक्सपेंसेस, रेंट, ये सब, वो आप पीएनएल अकाउंट में चार्ज करोगे और फिर नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करोगे। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है, we'll solve one more example. This is the question is, a firm has 3 partners, India, America and China. Profit sharing ratio is 3:2:1. चाइना अभी बहुत कोविड फैला रहा है तो उसको हम कम प्रॉफिट देंगे, ठीक है। चाइना का प्रॉफिट है 10,000, तो आपको फाइंड करना है कि टोटल प्रॉफिट क्या है और दूसरे पार्टनर्स का क्या प्रॉफिट है, दूसरे पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट मिलेगा। I'll repeat, a firm has 3 partners, India, America and China. The profit sharing ratio is 3:2:1. चाइना का प्रॉफिट है 10,000, तो ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ द फर्म क्या है और ईच पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा?
Yash says 60, Viren says 60. Correct, Viren. Correct, Yash. I can see only Yash and Viren are answering. I request every one of you to participate. So, यहाँ Rakesh says 60. Correct, Rakesh. Correct, Yash. So, okay, I'll just once again brief you. 11th स्टैंडर्ड में हमने सीखा था सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, लेजर्स कैसे बनाते हैं. वही सेम बेसिक प्रिंसिपल्स आपके 12th में भी कैरी होंगे पार्टनरशिप के लिए, या जो अगर आगे हम कंपनीज अकाउंट पढ़ेंगे उसके लिए. यहाँ पे पार्टनरशिप में सिर्फ एक छोटा सा चेंज होगा. वहां पे सोल प्रोप्राइटर में नेट प्रॉफिट आप सिंस आपके पास एक ही पर्सन था, आप डायरेक्टली नेट प्रॉफिट उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे. पर यहाँ पार्टनरशिप में सिंस आपके पास दो से ज्यादा मेंबर होंगे, आपको एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिटवीन द पार्टनर्स. वो नेट प्रॉफिट आप एज सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, प्रॉफिट कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो हम आगे सीखेंगे. आपको सम्स में नेट प्रॉफिट दिया जाएगा. दिस विल बी द बिगनिंग पॉइंट ऑफ योर सम. You will be given the net profit and you will have to distribute the net profit among the partners. Okay. So we'll move forward. अच्छा, हम ये तो बोल रहे हैं कि हम इनको पार्टनर्स को इतनी सैलरी देंगे, पार्टनर्स को इंटरेस्ट देंगे, पार्टनर्स को ये देंगे, पार्टनर्स को वो देंगे, पर हम ये डिसाइड कैसे करेंगे कि हमको पार्टनर्स को कितनी सैलरी देनी, कितना इंटरेस्ट देना है, कितना प्रॉफिट देना है, ये सब हम कैसे डिसाइड करेंगे? एनीवन? अभी हम जो सैलरी कैलकुलेट कर रहे, प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे, अभी तो सम में दिया हुआ है, लेकिन ये कहाँ से आया? ये हम डिसाइड कैसे करेंगे कि हमको किस पार्टनर को कितना देना है? ऐसे तो नहीं ना कि हम टॉस उछालेंगे और देखेंगे अच्छा ये जीता पार्टनर तो इसको ज्यादा मिलेगा, इसको कम मिलेगा, ऐसा करेंगे क्या? How will we dis? Yash says it will be written in the partnership deed. Anyone else? तो यस, यश इज करेक्ट. ये सब चीजें कहीं पे लिखी होगी. ऐसा तो नहीं है कि आज हमारा मन क्या इस पार्टनर को ज्यादा दे दिया, आज हमारा मन क्या वो पार्टनर अच्छा कर रहा है इसको ज्यादा दे दे, ऐसा नहीं होगा. ये कहीं ना कहीं पे लिखा होगा कि हमको किस पार्टनर को कितना देना है. उस चीज को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड. तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि व्हाट इज अ पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड इज बेसिकली एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, जहाँ पे वो क्या बिजनेस करेंगे, किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे, कैपिटल जो लाते हैं उस पर कितना इंटरेस्ट होगा, वो सारे क्लॉजेस वो पार्टनरशिप डीड में लिखे होते हैं. और वो सारे क्लॉजेस पे हर पार्टनर डिस्कस करता है. वो जब एग्री करता है तभी वो पार्टनरशिप डीड में आते हैं और फिर वो पार्टनरशिप डीड साइन होती है. डू यू गेट इट? पार्टनरशिप डीड कैन बी रिटन और ओरल. यश? Yes, partnership deed can be written or oral, but it is safer to have a written partnership deed. तो जब भी हम किसी चीज का कोई कैलकुलेशन करने जाएंगे कि अगर को हमको लिखा है कि इसका प्रॉफिट निकालो, इसकी सैलरी निकालो इस पार्टनर की, तो हम सबसे पहले बोलेंगे भाई हमको पार्टनरशिप एग्रीमेंट चाहिए. हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट खोलेंगे, उसमें देखेंगे कि इसमें क्या लिखा है कि किस पार्टनर को कितनी सैलरी देनी है, किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट देना है, और उस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? तो पार्टनरशिप डीड में देयर कैन बी क्लॉजेस
which are important to us, like profit sharing ratio, कैपिटल इंटरेस्ट एंड एवरीथिंग, एंड देयर आर अदर क्लॉजेज ऑल्सो कि हम कौन सा बिजनेस चलाएंगे, क्या करेंगे, वो क्लॉजेज भी होंगे, बट दोज क्लॉजेज आर, वो हमको अकाउंट्स में फिलहाल जरूरत नहीं है. अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है? कैन देयर बी अ केस के सामने वाला पार्टनरशिप एग्रीमेंट ना दे या पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं हो? एवरीवन प्लीज रिप्लाई. तो इफ देयर इज अ केस कि हमारे पास पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, तो हम प्रॉफिट, सैलरी, ये सब कैसे कैलकुलेट करेंगे? चलो, अगर हमको पार्टनरशिप एग्रीमेंट मिल गया तो हमारे लिए आसान है कि हम लिख लेंगे, ठीक है, इसमें दिया है कि प्रॉफिट 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. उसमें लिखा है कि पार्टनर्स को 2,000 सैलरी देनी है, तो हम 2,000 सैलरी दे देंगे. पर अगर एग्रीमेंट ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? एग्रीमेंट नहीं है तो हम अपनी मनमर्जी के हिसाब से तो नहीं दे सकते. तो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रूल्स है कि अगर यश सेज इक्वली व्हाट यश विल, राइट, प्रॉफिट्स हम इक्वली देंगे. जस्ट, तो अगर ऐसा केस आता है कि हमारे पास पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, तो हमारे लिए सबसे इजी चीज है, हम प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. So I'll just request you to go through this table. Rules applicable in the absence of a partnership deed. अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम ये सब चीजें कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनरशिप डीड है तो उसमें लिखा रहेगा कि 6% चार्ज करना है, 10% चार्ज करना है, तो उसके हिसाब से हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे. पर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं होगा. देयर विल बी जीरो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अगर हमको ऐसा एक सम दिया है कि देयर आर 2 पार्टनर्स जिनका 10,000 कैपिटल इन्वेस्ट किया है, दे हैव नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड द कैपिटल इंटरेस्ट रेट फॉर द कैपिटल इज 6%, तो क्या हम कैपिटल चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? नहीं, बिकॉज एग्रीमेंट नहीं है. भले ही उन लोग सम में दिया है, लेकिन अगर ऐसा लिखा है कि एग्रीमेंट नहीं है तो हम इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज टू बी चार्ज टू एनी पार्टनर इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड. सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर, नॉट अलाउड. अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, उसमें लिखा नहीं है कि आपको इतनी सैलरी देनी है, तो आप सैलरी और कमीशन चार्ज नहीं करेंगे. इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर, इसके बारे में हम आगे और भी डिस्कस करेंगे. फिलहाल सिर्फ ये देख लीजिए कि अगर इंटरेस्ट, पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दिया है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा 6%, भले ही पार्टनरशिप डीड है या नहीं है, उस पर हम 6% चार्ज करेंगे. अगर पार्टनरशिप डीड में लिया है कि 9%, तो 9% भी चार्ज कर सकते हैं, पर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम 6% चार्ज करेंगे. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अगर पार्टनरशिप डीड है और उसमें लिखा है कि हमको कैसे प्रॉफिट चार्ज करना है तो हम वैसे करेंगे. अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम इक्वली प्रॉफिट को सब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. फिर हम नहीं देखेंगे कौन से पार्टनर ने कितना काम किया है, कौन से पार्टनर की क्वालिफिकेशन ज्यादा है, हम वो कुछ भी नहीं देखेंगे. अगर एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके. ओके, तो फिर यहाँ पे मैंने एक नई चीज बोली है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर. तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप पार्टनरशिप फर्म ने, एक पार्टनर ने उस फर्म को लोन दिया है, एक पार्टनर है उसने अपने फर्म को लोन दिया है, तो उस पर इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा, राइट? तो आई वांट टू नो, ये जो इंटरेस्ट हम पार्टनर को पे कर रहे हैं, जो उसने लोन दिया है फर्म को, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा? इफ देयर इज एन लोन गिवन बाय अ पार्टनर टू द फर्म,
तो वो जो लोन है उस पे जो इंटरेस्ट होगा, जो इंटरेस्ट पार्टनर को फर्म पे करेगी, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? यश सेज पीएनएल अकाउंट. Why P&L account? Anyone? And why not profit and loss appropriation account? You guys are correct. The interest on loan given to a firm by the partner will go to profit and loss account. See, कैपिटल लाना पार्टनर का काम है, ठीक है. अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट होता है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा, क्योंकि वो अगर हमको प्रॉफिट हुआ तो ही हम पार्टनर को कैपिटल इंटरेस्ट देंगे कैपिटल पे. लेकिन लोन इज, फर्म को लोन देना इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द पार्टनर. वो पार्टनर एक एक्स्ट्रा चीज कर रहा है फर्म के लिए कि अच्छा फर्म के पास पैसे नहीं है तो उसको एज अ लोन दे रहा है. तो उस लोन पे तो हमको इंटरेस्ट देना कंपलसरी है. ऐसा नहीं है कि अगर हमको प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम उसको इंटरेस्ट नहीं देंगे. लोन देना तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था. कैपिटल देना वो पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बट लोन देना वो पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी. लोन वो ओवर एंड अबाउट द कैपिटल दे रहा है. जैसे कोई टीचर है, आपकी स्कूल है फ्राइडे तक, टीचर फ्राइडे तक पढ़ा रही है, उसको फ्राइडे तक की सैलरी मिल रही है, ठीक है. क्या सैटरडे संडे पढ़ाना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नहीं, पर वो उसके लिए एक्स्ट्रा पढ़ा रही है, राइट. वैसे ही ये पार्टनर एक्स्ट्रा पैसे दे रहा है एज लोन टू द फर्म. तो उस लोन पे फर्म को पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, चाहे उसको प्रॉफिट हो या ना हो. तो ऐसे एक्सपेंस जो हमको देने पड़ते हैं, भले ही हमको लॉस हो या प्रॉफिट, वो हम पीएनएल में चार्ज करते हैं. तो इज दैट क्लियर? Why interest on loan will go to P&L account? Because loan is, to give a loan to the firm is not the responsibility of the partner. अगर पार्टनर लोन दे रहा है तो फर्म को उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, भले ही फर्म को लॉस हो या प्रॉफिट हो. Hence the interest given on loan to the partner is shown in the P&L account. Is that clear, everyone? Please comment in the chat section if you have any queries, or is it clear? ठीक है. So सिर्फ interest on loan to the partners will go to P&L account. Rest all, that is salary, commission, profit, will go to profit and loss appropriation account. तो अब तक हमने जो पढ़ा है उसको हम एक बार सिर्फ, एवरीवन हैज अ पीडीएफ फाइल जो सिद्धार्थ सर ने आपको फॉरवर्ड की है, करेक्ट? तो अभी तक जो हमने पढ़ा है, विल जस्ट गो थ्रू दैट पीडीएफ फाइल वंस टू सी द थियरी सेक्शन. एक बार गवर्नमेंट ने जो टेक्स्ट बुक दी है उसको भी पढ़ के देखना पड़ेगा ना. तो हम जो चैप्टर कर रहे हैं दैट इज इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप. कैन एवरीवन सी द स्क्रीन? तो इसमें क्या दिया है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप वो हमने देख लिया था. व्हाट इज पार्टनरशिप? व्हेन टू और मोर पीपल come together to share the profit of a business carried on by all or any one of them acting for all. जब दो या ज्यादा लोग आते हैं to run a business and to earn profit and share it, it is called a partnership. Then what are the characteristics of partnership? It is created by a contract. जो अभी हमने partnership deed पढ़ी, तो उसके लिए पार्टनरशिप डीड होनी जरूरी है. वो ओरल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है. पार्टनरशिप का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. ऑब्वियसली कोई दो जन बिजनेस करने के लिए एंटर कर रहे हैं तो उनका ऑब्जेक्टिव होगा कि वो प्रॉफिट अर्न करे. इट शुड बी अ लीगल बिजनेस. अगर आप स्मगलिंग का बिजनेस कर रहे हो तो इट वोंट बी कंसिडर्ड एज अ पार्टनरशिप इन द अकाउंट्स. एजेंट फॉर ईच अदर, मतलब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एजेंट.
नंबर ऑफ पार्टनर्स, पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए, वो तो ऑब्वियस है, एक जन मिलके तो पार्टनरशिप फॉर्म बना नहीं सकता, तो मिनिमम 2 पार्टनर्स चाहिए, मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं एज पर कंपनीज एक्ट। फिर अनलिमिटेड लायबिलिटीज, पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। एनीवन नोज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटीज? एनीवन नोज? प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? येस और नो कमेंट करो। Viren says yes. Viren, what is the meaning of unlimited liability? Anyone? Yes के साथ reason भी लिखना है. What is the meaning of unlimited liability? Yes. What? What is the meaning? You can also unmute your mic and speak if you want. Yash Agarwal, personal assets can be used to pay firm's liability. Correct. तो यश ने लिखा है पर्सनल एसेट्स कैन बी यूज टू पे फर्म्स लायबिलिटी. दैट इज करेक्ट. लिमिटेड लायबिलिटी मतलब जितना पार्टनर ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है आप उतना ही फर्म्स की लायबिलिटी को पे करने के लिए यूज कर सकते हो. अनलिमिटेड मतलब अगर पार्टनर्स का कैपिटल खत्म हो गया, प्रॉफिट खत्म हो गया, तो आप पार्टनर की पर्सनल लायबिलिटी जैसे उसका घर वो सब भी यूज कर सकते हो टू पे आउट द एक्सपेंसेस और द लायबिलिटीज ऑफ द फर्म. ठीक है. फिर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ द फर्म. पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स ही ओनर होते हैं, पार्टनर्स ही फर्म को मैनेज करते हैं. नेक्स्ट इज पार्टनरशिप डीड. सो व्हाट इज द पार्टनरशिप डीड? ये भी हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप डीड इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स जिसमें वो लोग क्लॉजेस डिस्कस करते हैं. जो सारे क्लॉजेस सारे पार्टनर्स एग्री करते हैं वो पार्टनरशिप डीड में आते हैं और फिर पार्टनर्स उस डीड को साइन करते हैं और वो आगे यूज होता है. तो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है? डिटेल्स ऑफ द पार्टनर्स, डिटेल्स ऑफ द फर्म, टाइप्स ऑफ बिजनेस के क्या बिजनेस करना है क्या नहीं करना है, कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कभी शुरू हो रही है उसका कमेंसमेंट होता है. कैपिटल, कैपिटल मतलब कितना पार्टनर क्या कैपिटल लाएगा. सपोज ये पार्टनर एक पार्टनर है वो 50,000 लाएगा, एक पार्टनर है वो 1 लाख लाएगा, एक पार्टनर है वो कुछ भी नहीं लाएगा. तो द अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिटन इन द पार्टनरशिप डीड. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कितना इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे पार्टनर्स को वो भी पार्टनरशिप डीड में होगा. ड्रॉइंग्स, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट द पार्टनर्स कैन विदड्रॉ, वेदर 5,000 2,000 कितना अमाउंट पार्टनर विदड्रॉ कर सकते हैं वो भी पार्टनरशिप डीड में रहेगा. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, एट व्हाट रेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी गिवन टू द पार्टनर्स वो भी पार्टनरशिप डीड में होगा. अच्छा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देना है क्या? Do you have to give interest on drawings if there is no partnership deed? Please reply. अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देना है क्या? प्लीज रिप्लाई इन द चैट सेक्शन. अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनर ने ड्राइंग्स लिया है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना है क्या? यश सेज नो. यस. वीरेन सेज यस. राकेश सेज नो. हमने अभी पढ़ा था कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर पे इंटरेस्ट देंगे 6% और प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. उसके अलावा हम कुछ भी नहीं देंगे, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ना सैलरी, ना कमीशन. So no, if there is no partnership deed, there is no interest to be charged on drawings. पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सिर्फ दो चीजें होगी, एक प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा और दूसरा अगर पार्टनर ने कोई लोन दिया है फर्म को
तो उस पर 6% इंटरेस्ट चार्ज होगा. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, तो ये क्लियरली याद रखना, बिकॉज एग्जाम में अगर ऐसा दिया है कि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आप पार्टनर को कुछ भी नहीं दोगे एक्सेप्ट शेयरिंग द प्रॉफिट इन इक्वली, और अगर लोन है तो लोन पे 6% इंटरेस्ट. बाकी कुछ भी देना है तो पार्टनरशिप डीड या आपको उधर मेंशन किया होगा कि पार्टनर्स को इतनी सैलरी दी जा रही है या इतना ये दिया जा रहा है. ओके, नेक्स्ट पार्टनरशिप डीड में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, वो हमने देख लिया है. फिर सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन, पार्टनर्स को कितना देना है वो इसमें लिखा है. फिर इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय पार्टनर टू द फर्म, ये हमने देखा कि इंटरेस्ट अगर पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो उसको इंटरेस्ट देना है. अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है कितना इंटरेस्ट देना है या पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम 6% के हिसाब से देंगे. अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है 9%, 12%, 5% तो उसके हिसाब से देंगे. फिर गुडविल, फिर एडमिशन, रिटायरमेंट, ये सब हम आगे पढ़ेंगे कि एडमिशन होगा तो क्या करना है, रिटायरमेंट होगा तो क्या करना है. ठीक है, देन यहाँ पे लिखा है प्रोविजंस, ट्रीटमेंट, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या करना है वो सब यहाँ पे लिखा है 5th पॉइंट पे. वो हमने ऑलरेडी देख लिया है कि क्या, कि अगर प्रॉफिट है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है और लोन है तो 6% इंटरेस्ट देना है. उसके अलावा कोई भी पेमेंट नहीं होगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है. ठीक है, इज एवरीवन क्लियर? तो आज हमने जो पढ़ा उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेंगे एंड विल एंड दिस सेशन हियर टुडे. तो आज हमने क्या पढ़ा है? Accounting changes between sole proprietorship and partnership. Is there any accounting change between sole proprietorship and partnership? Everyone, is there any accounting change between sole proprietorship and partnership? What is the change? Accounting change. I'm asking accounting change, okay? मीनिंग में तो डिफरेंस है. सोल प्रोप्राइटर एक सिंगल पर्सन करता है, पार्टनर 2 पर्सन या ज्यादा से करते हैं. बट अकाउंटिंग चेंजेस में क्या चेंज है पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर में? प्लीज रिप्लाई. What is the accounting change between sole proprietorship and partnership firm? Mahesh, distribution of profit. करेक्ट. और बाकी सारी चीजें सेम है, बस जो प्रॉफिट है वो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लाके पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ओके. सेकेंड हमने देखा व्हाट इज पार्टनरशिप एंड व्हाई इट इज फॉर्म. तो पार्टनरशिप इज 2 और मोर पीपल कमिंग टुगेदर टू रन अ बिजनेस एंड अर्न प्रॉफिट. एंड व्हाई इट इज फॉर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप सिर्फ एक पर्सन करेगा तो कितना, अगर किसी को एक्सपांड करना है, एक उसके पास सिर्फ एक बिजनेस नॉलेज है, उसको दूसरे बिजनेस की नॉलेज चाहिए, कैपिटल चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो हम पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं. व्हाट इज पार्टनरशिप एग्रीमेंट, हमने देखा कि जो भी क्लॉजेज है जिसपे पार्टनर्स एग्री करते हैं तो उसका एक एग्रीमेंट बनता है जिसपे सब पार्टनर्स साइन करते हैं और जो फ्यूचर पर्पस में यूज होता है, दैट इज पार्टनरशिप एग्रीमेंट. यूटिलिटी ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, टू लीगल कुछ काम पड़ा तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट लगता है. प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमको कैसे अकाउंटिंग करनी है वो चेक करना है तो हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेक करते हैं. नेक्स्ट हमने पढ़ा रूल्स अंडर पार्टनरशिप एक्ट इन केस नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज मेड. तो हमने देखा कि अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो क्या होगा, प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, लोन है तो 6% इंटरेस्ट मिलेगा, उसके अलावा हम कुछ भी कैलकुलेट नहीं करेंगे. फिर हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ अप्रोप्रिएशन एंड डिफरेंस बिटवीन अप्रोप्रिएशन एंड चार्ज. कॉन्सेप्ट ऑफ अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन मतलब बंटवारा, जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसमें पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा वो हमने देखा. फिर डिफरेंस बिटवीन अप्रोप्रिएशन एंड चार्ज. डिफरेंस बिटवीन अप्रोप्रिएशन एंड चार्ज क्या है? चार्ज आर दोस एक्सपेंसेस जो भले ही लॉस हो या प्रॉफिट हो हम चार्ज करते ही हैं वो, और वो सब पीएनएल में जाते हैं. और अप्रोप्रिएशन का मतलब है कि हमारा जितना प्रॉफिट हुआ है उसको हम ध्यान में रखते हुए चीजों को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? So I'll be ending my session for today. So I'll like to know if you have any doubts so we can solve that.
Do you have any doubts? Please let me know through the chat section. Okay, so I'll be ending my session today. If you have any doubts, you can also WhatsApp Siddharth sir. ये हमने जो आज पढ़ा वो एकदम बेसिक चीजें थी पार्टनरशिप की, जो हमें आगे सारे चैप्टर्स में बहुत यूजफुल होगी और हमारे सम्स सॉल्व करने में बहुत यूजफुल होगा. आगे हम इस चैप्टर को और भी कंटिन्यू करेंगे और सम्स सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट सेशन विल बी मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल सेशन जिसमें हम सम्स और सब सॉल्व करेंगे. तो बी रेडी विथ योर टेक्स्ट बुक्स एंड पेन so we can do the sums, and I'll be also sending some sums to Siddharth sir who and he'll forward it to you. तो वो आपको solve करके रखना है next session तक. Is that clear? Okay, fine. I'll be ending the session. Bye. Take care.